माननीय डीन कॉलेज जी प्रोफेसर पाली, डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर सिंह और रजिस्ट्रार विकास गुप्ता जी and our finance officer Girish Ranjan ji. And I think most of the things have already been said, and in a true spirit, the responsibility has been assigned to me is to make you apprised about what all university initiatives have been taking place in the last few years and what all yet to happen in coming times. So there are few things which are very important, as Jayachandra has already expressed his concern about the documentation and the data retention and all that. So I'll just give you some of the statistics that what we have, what university has achieved so far, what university is providing in terms of the information and the technology landscape. University is providing the effective support for the effective information dissemination through the various websites, through the various portals, through the various mechanisms to all its stakeholders, so that the right information should reach the right person at the right time. This is the university's objective. But sometimes we get late, we delay the process because of various reasons, because of our own procedural nuances and delays. We are posting about 200, more than 200 websites of different departments, different colleges, different units, and different type of information categorized have been displayed. And university has come up with various policies in terms of the ownership of that information, what we publish on the website, and the usage policy of that data, what we publish on the website, and the nuances of those policies. Because now the data, what we receive from various segments of the society and what we publish, what are our rights to publish that information and how we can retain that information. And what are our rights to retain that information and for how long. So this is very complicated thing, and that is why this is a very serious matter of concern, that the retention and the confidentiality of the information within the university ecosystem. And that is why the Satarkta event जो हम लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा relevant है और उससे संबंधित है. Regarding online services, आप सभी को पता होगा कि तरह तरह की online services यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे अपने एम्प्लॉइज हैं, स्टूडेंट्स हैं, या अदर स्टेक होल्डर जो इस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं. इट कुड बी मिनिस्ट्री, इट कुड बी अदर डिपार्टमेंट्स एंड अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. हम लोग एक यूनिट की तरह काम करते हैं और एक वर्क फ्लो मेंटेन करते हैं कि इंफॉर्मेशन किस यूनिट से कहाँ तक पहुँच रही है और उसका क्या वर्क फ्लो है, उसके कौन ओनर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे वो काउंसिल ब्रांच है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच है, चाहे वो फाइनेंस ब्रांच है, तरह तरह की पॉलिसीज यूनिवर्सिटी पब्लिश करती है, कंपाइल करती है. किस चीज़ के लिए? क्योंकि एंड यूजर को पूरी मदद मिल सके और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे. कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हमें कुछ काम सिर्फ कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से करने पड़ते हैं. वो हम अपने आप ही कर सकते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ कोर्ट की डायरेक्शन के थ्रू हम लोग काम करने पड़ते हैं. तो ऐसी सिचुएशन हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए कि बिना किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन शुड बी मेड अवेलेबल, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड बाय द कम्युनिटी. सेकेंड इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, एडमिशन हो, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, या और भी बहुत सारे विभाग है जिनकी इंफॉर्मेशन लोग देखना चाहते हैं. वो सिर्फ विजिटर्स हैं, वो गेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैं, और कोई भी हो सकते हैं. तो क्या वो इंफॉर्मेशन है जिनको हमें हर समय अपडेटेड तरीके से वेबसाइट पर दिखाना चाहिए, वो हम सब लोगों को डिसाइड करना होता है. समय समय पर वी रिसीव द डायरेक्शंस फ्रॉम द अथॉरिटीज दैट एवरीथिंग शुड बी मेड ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल ऑन ऑल द वेबसाइट्स, ऑल द पोर्टल. Registrar has effectively mentioned that the use of technology will make us more transparent, more productive, and
timely in terms of provisioning of information to all the stakeholders. So some frameworks have already been deployed by the university. I think we urge everyone to take the active participation using those frameworks and the systems. And these automation systems are there to help us for enhancing our productivity. And university has been organizing various workshops, training workshops and awareness program regarding those automations. So everybody is taking part in that. And some of the processes have already been made operational, whether it is a leave management of the university, and PIC is recently has been deployed. So you don't have to submit the bulk, CDs or the CVs to the computer center for annual increment of that. You have to just update your information on the portal itself, and that can be monitored effectively. एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डेटा रिटेंशन को लेकर चर्चा में है। कोर्ट की डायरेक्शन हम लोगों को मिलती रहती है, मिनिस्ट्रीज की डायरेक्शन हम लोगों को मिलती रहती है कि किसी डॉक्यूमेंट और किसी इंफॉर्मेशन की लाइफ साइकिल क्या है। शायद हम लोगों में से बहुत इफेक्टिव और करेक्ट लाइफ साइकिल हमें नहीं मालूम है। एकेडमिक रिकॉर्ड की लाइफ साइकिल क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड की लाइफ साइकिल क्या है, और हम कब तक उस रिकॉर्ड को रख सकते हैं या रखना चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस हैं और सारी गाइडलाइंस हर जगह कम्युनिकेटेड भी हैं। तो हमें उन डेटा को किस तरह प्रिजर्व करना है, जैसे जयचंद्र जी ने बताया कि उसको चाहे स्कैन करें, विपिन जी ने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन स्टेट के लिए कितना इफेक्टिव है, तो उन सबका डिजिटाइजेशन करना, उन सबको उनकी एक डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी बनानी और एक नॉलेज बेस क्रिएट करना यूनिवर्सिटी के लिए, आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, so that any information can be made available to any person anytime. So that is the core objective. अगला है सिक्योरिटी ऑफ द ई-प्लेटफॉर्म। समय समय पर हमें एडवाइजरीज मिलती रहती हैं कि अटैक्स आ रहे हैं। डेली बेसिस पे बहुत सारे अटैक्स मिटिगेट करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से ओरिजिनेट हो, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़े और कॉन्फिडेंशियल डेटाबेस को संभालती है। वो पर्सनल भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है, सारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स भी हैं। तो हमें समय समय पर ये भी बताना होता है एम्प्लॉयज़ को ये कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए अपनी ही प्रोफाइल को मैनेज करना। इसीलिए सारी वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं। हम लोग मिनिस्ट्रीज के टच में रहते हैं हमेशा फॉर द सिक्योरिटी मेजर्स। STQC इज ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी मदद करता है सिक्योरिटी ऑडिट के लिए। हमारी वेबसाइट्स हैं, डेटाबेसेस हैं। So security compliances is one thing which we are constantly updating our information. IQAC is another important unit of the university because they are the official custodian of the official information of the students or the employees or anything, right? So it is important for them to how to retain that information and who all are eligible to access that information and what is the hierarchy to access the information. अगला बिंदु है वेबसाइट अपडेशन का। हम लोग यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से अपडेट देना किसको है, कब है, अपनी यूनिवर्सिटी पर पब्लिश करती रहती है, लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन फ्लो मैनेजमेंट की वजह से कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हो पाती हैं। ये कमी है, इसे हमें सुधारना होगा। और एक नया सिस्टम विद consent of the authorities sitting on the dais, we are introducing this time the content federation system. अभी तक जो content updation का mechanism था कि सब लोग ईमेल करते हैं content update करने के लिए, उससे पता नहीं चलता है, कई बार spam में चली जाती है मेल, किसी unintended audience को भी चली जाती है, जैसे document जो public नहीं हो public हो जाता है। तो हम लोग इस बार एक content federation system introduce कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, पहले से ही एग्जिस्ट करता था, जिसमें हर यूनिट अपना एक सेपरेट कंटेंट मैनेजमेंट फीचर मैनेज करेगा और वो अपडेट करेगा और वो सीधा वेबसाइट पर चला जाएगा। सो जो प्रोड्यूसर है कंटेंट का, दे विल मैनेज देयर ओन कंटेंट विदाउट गेटिंग इनटू द मेलिंग एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। सो दैट विल बी मच फास्टर, मच क्विकर, मॉडरेटेड एंड विद द कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द कंटेंट प्रोड्यूसर। So whether it's a library or the examination or admission or whatsoever, the information should go to the public side. इस समय भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन
अब आने लगी हैं, वो सिर्फ समर्थ पोर्टल की वजह से उनको संभव हो पाया है कि जितने फैकल्टी मेंबर्स ने अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट किया है समर्थ पे, उनकी इंफॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिखती है। अब यूनिवर्सिटी ने वो प्रोविजन बंद कर दिया है कि आपकी पीडीएफ जो आप देंगे वो अपलोड होगी, वो नहीं होगी। एक ही सिस्टम होगा। अब जब आप अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। इससे डिले कम होगा, कंटेंट ओनर जो है उसको सुविधा रहेगी, उसको जो अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है वो इमीडिएटली विजिबल होगी वेबसाइट पर। दूसरा है the procedures of online service, availing the online services. All of the units of the university, departments, colleges, they have been given their respective logins and the usage rights and also the documents related to the operation of that automation, so that आप अपने आप उस framework को use करके कोई भी information update कर सकते हैं without creating another document. दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लीज मेक द digitization of your old documents, because we need to retain those documents, as Jayachandra ji said, retain a copy of the document which you are discarding, which is very important. So rather than getting into that loop, please scan them, digitize them and make a repository unit wise and branch wise, so that those are searchable and university can take any document and search any document and use that at the right time. I'm just closing this and thank you very much. And DUCC is always available for you for any kind of services, whether it's a website related, updation or online services. Thank you very much. धन्यवाद संजीव जी। आज की दुनिया में जानकारी, इंफॉर्मेशन, ये सबसे बड़ा हथियार भी है और धरोहर भी है। इसको समेटना, संजोना और सही जगह पे इसको उजागर करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विजिलेंस का ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और संजीव जी ने इसको बहुत अच्छे से उजागर किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो हमें करने की ज़रूरत है। तो आप लोग जो यहाँ पे एक तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, टीचर्स हैं, सब लोग हैं, हमारे जो वक्ता हैं, यदि आप देखें तो सिर्फ आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं, ये आपका कहाँ आपका रोल बनता है, आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है अपने अपने कार्य क्षेत्र में, ये भी हमें बता रहे हैं और इस चीज़ को हम सबको नोट करने की ज़रूरत है और उस दिशा में काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। अगले वक्ता हैं रोहन राय जी। विजिलेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि ग्रीवेंसेस अगर क्रिएट हो रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है तो उसका रिड्रेसल ज़रूर होना चाहिए। रोहन राय जी हमारे डेस्क भी देखते हैं तो इनको थोड़ा आइडिया भी है किस तरह से ग्रीवेंसेस आते हैं। रोहन राय जी प्लीज। धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी। Respected Dean of Colleges, Director South Campus, Registrar Sir, Finance Officer, and all the dignitaries in the hall, नमस्कार। जैसा कि मीनाक्षी जी ने बताया कि ग्रीवेंसेस पे हम कुछ बात करना चाहेंगे। आप अगर सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की बात हुई, प्रिवेंटिव विजिलेंस कैंपेन के तहत जो 4 मॉड्यूल्स आए थे गवर्नमेंट के, उसमें पहले प्रॉपर्टी मैनेजमेंट था, उसके बाद रिकॉर्ड्स था और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ग्रीवेंसेस जो डील हम करते हैं एज नोडल ऑफिसर सीपी ग्राम्स, वो 2 बहुत महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो हमारे पूर्व वक्ता हैं संजीव जी और जयचंदा जी, इन्होंने जिन विषयों पर बात की है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ पहले तो कुछ बताऊंगा कि सीपी ग्राम्स पोर्टल क्या है और कैसे काम करता है और कुछ अनुरोध भी करना है। लेकिन वो करने से पहले मैं
इस मंच से पहले तो रजिस्ट्रार साहब से क्षमा चाहता हूं कि उनका एक आदेश मैं एज जॉइंट रजिस्ट्रार एस्टैब्लिशमेंट टीचिंग पूरा नहीं कर पाया हूं, और हमारे एस्टैब्लिशमेंट टीचिंग के जो भी स्टाफ हैं, मैं उनकी ओर से और अपनी ओर से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगले 10 दिन में वो जरूर शुरू हो जाएगा। अब प्रिवेंटिव विजिलेंस क्यों किया जाता है, इसमें एक है कि enable higher levels of transparency and efficiency in public grievance, public governance. So transparency के लिए grievance का redressal बहुत जरूरी है. When there is governance, there is grievance. Because the moment you take any decision, there are people who, or there are different stakeholders which may feel aggrieved. So grievance कैसे generate होती है? जब कोई भी request जो हम यूनिवर्सिटी सिस्टम में करते हैं, किसी रिक्वेस्ट पे जब हम कार्रवाई करते हैं तो उस रिक्वेस्ट को आइदर वी एक्सेप्ट और वी रिजेक्ट। इफ वी एक्सेप्ट, देन द स्टेकहोल्डर्स हु आर नॉट keen that this request be accepted, there is a grievance for them, and if we reject it, then there is the grievance from the applicant. So grievance redressal is one thing which is very important in public governance. और इस बात को देश की सरकार ने 1966 में सबसे पहले समझा और पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया था, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो उस समय मंत्री हुआ करते थे, उनके अध्यक्षता में था। फिर के हनुमंतैया उसके अध्यक्ष बनाए गए। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है वो 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बना था। जो आरटीआई की बात हुई तो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की एक रिपोर्ट जो है वो आरटीआई से भी संबंधित थी, जिसकी वजह से आरटीआई एक्ट भी आया, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें थी। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में ही ग्रीवांस रिड्रेसल की रिपोर्ट थी। तो ग्रीवांस रिड्रेसल के बारे में देश की सरकार बहुत समय से ऐसा सोच रही है और उस पर अलग अलग निर्णय भी आते रहते हैं और डायरेक्शंस भी इशू करते रहते हैं कि पब्लिक गवर्नेंस में ग्रीवांस को कैसे रिड्रेस करना है। जो वर्तमान में सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये ग्रीवांस रिड्रेसल का आईटी के इस्तेमाल के साथ एक पोर्टल है जिसपे कोई भी नागरिक देश का अपनी ग्रीवांस रजिस्टर कर सकता है और उस पर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह सिस्टम शुरू हुआ जून 2007 से और इसी उसमें जो है वो जून 2007 से ये सिस्टम हुआ और इसको गवर्न करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जो भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय का एक विभाग है। तो centralized public grievances redress and monitoring system which is called CP grants। और मैं आज आप लोगों के साथ इसलिए इस विषय पर बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे नोडल ऑफिसर CP grants की भी जिम्मेदारी दी गई है। CP grants जब आप CP grants की एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको उसमें आप अपनी ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपसे एक अंडरटेकिंग मांगता है वो पोर्टल। वो अंडरटेकिंग क्या मांगता है? अंडरटेकिंग ये मांगता है कि आप जिस विषय पर अपनी ग्रीवांस डालना चाहते हैं वो आरटीआई मैटर नहीं है, कोर्ट रिलेटेड या सब जुडिस मैटर नहीं है, रिलीजियस मैटर नहीं है, सजेशन नहीं है। ये भारत सरकार की CP ग्रांट्स की जो वेबसाइट है उस पे आप कोई भी ग्रीवांस अपनी रजिस्टर करने जाएंगे तो आप जब उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जो भी चीज मैं इस पे करने जा रहा हूं वो इन विषयों से संबंधित नहीं है, तभी आप उस पे आगे कार्रवाई करते हैं। आप उस पे रजिस्टर करते हैं, अपनी ग्रीवांस लिखते हैं। वो ग्रीवांस जो लोग पोर्टल मैनेज करते हैं वो जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग को देते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में यह है कि कोई ग्रीवांस अगर रजिस्टर हुई जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का नाम हो, दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हो, या कोई भी भारत का नागरिक जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कार्य पर कोई ग्रीवांस जनरेट हुआ है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करके पोर्टल पर ग्रीवांस रजिस्टर करा सकता है। वो ग्रीवांस वहां से मार्क होती है शिक्षा मंत्रालय को। शिक्षा मंत्रालय में जो ब्यूरो यूनिवर्सिटीज देखता है उसके पास आती है, वहां से फिर वो यूनिवर्सिटी को आती है, जहां पर नोडल ऑफिसर के अपने रजिस्ट्रेशन, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से उस पोर्टल को खोल के वो ग्रीवांस डाउनलोड करता है। हमारे यहाँ जो प्रक्रिया अभी एस्टैब्लिश्ड है उसमें यह है कि हम ग्रीवांस रजिस्टर जो भी हुई और ट्रांसफर होके हमारे पास आई, हम उसको डाउनलोड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें किस विभाग से संबंधित ग्रीवांस है, और कंसर्न विभाग को हम भेजते हैं कि आप हमको 7 दिन के अंदर इस पर अपना इनपुट दीजिए ताकि हम इसका जवाब दे सकें। जो इनपुट हमें विभागों से प्राप्त होता है उसके बेसिस पे हम उसका एक जवाब बनाते हैं। उस जवाब को रजिस्ट्रार साहब से अप्रूव करा के हम उसी पोर्टल पे अपलोड करते हैं। भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक गवर्नेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट, इसको इंश्योर करने के लिए इसमें और भी बहुत सारे सुधार कर रही है। पहले एक ग्रीवांस का जवाब देने का समय 45 दिन था, अब इसे 30 दिन कर दिया गया। जिस ग्रीवांस को पोर्टल ने अर्जेंट फ्लैग किया है उसका जवाब 3 दिन में देना है। यह भारत सरकार के इनिशिएटिव है। डीएआरपीजी ने एक आउटबाउंड कॉल सेंटर शुरू किया है। इससे पहले सरकार ने एक अपील का ऑप्शन खोला था। जैसे किसी आपकी ग्रीवांस रजिस्टर हुई, ग्रीवांस पे कोई जवाब आया, आप जवाब से संतुष्ट नहीं है, आप फीडबैक भी दे सकते हैं, और आप अपने फीडबैक में ये बता, अगर आपने अपना फीडबैक दिया नॉट सेटिस्फाइड या पुअर, तो आपको एक ऑप्शन खुलता था जिसमें आप अपील कर सकते थे। जो भी जवाब आपको मिला है जिस भी संस्था से, उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपील करिए, साहब हमको जवाब जो मिला वो सही नहीं मिला, नया जवाब आप इसको फिर से देखिए। जो नया इनिशिएटिव है आउटबाउंड कॉल सेंटर का, उसमें डीएआरपीजी विभाग से जो भी रजिस्टर्ड ग्रीवांस है उसके फोन नंबर पर एक कॉल जाएगी और उससे ये फीडबैक लिया जाएगा कि क्या आपने जो ग्रीवांस डाली थी उसका जवाब आ गया है, आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है। पहले एप्लीकेंट के पास ये चॉइस होती थी कि वो इस केस को फर्दर करना चाहता है तो अपील करेगा, और जब वो अपील करता था तो फिर से, और जब तक अपील वो फाइल नहीं करता था तब तक ग्रीवांस क्लोज मानी जाती थी। इस कॉल सेंटर से ये हो रहा है कि जैसे ही कॉल पे एप्लीकेंट ने ये कहा कि हम जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो आपकी अपील भी जनरेट हो गई और जो ओरिजिनल ग्रीवांस क्लोज थी वो भी ओपन हो गई। तो ये कुछ नए इनिशिएटिव हैं। सरकार इसमें ये भी चाहती है कि हम रूट कॉज एनालिसिस करें कि कैसे ग्रीवांस जनरेट हो रही है और न जनरेट हो इसकी क्या तैयारी हो सकती है या क्या प्रक्रिया हो सकती है। अभी जो भी बातें आज यहां हुई उसमें यही है कि अगर हम अपना कार्य समय से और सही से करेंगे तो ग्रीवांस कम जनरेट होंगी। मैं एज नोडल ऑफिसर जो ग्रीवांसेस मैं देखता हूं ज्यादातर उसमें ये होती है कि मैंने ये एप्लीकेशन लगाई थी, इसका ये अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। रजिस्ट्रार साहब ने अपने वक्तव्य में कहा था कि आप कार्य करिए, सही होगा गलत होगा उस पर बाद में करेंगे, पहले कार्य करिए। तो हमारा दायित्व बनता है कि जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है, जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, उस पर जो भी नियमानुसार
कार्रवाई हो सकती है वो किया करें, और उसका जो भी जवाब है वो उसको जिसने अपनी रिक्वेस्ट लगाई है उसको दे दें। इससे हम ग्रीवांसेस को कम करेंगे, तो ग्रीवांस पोर्टल पे जो ग्रीवांस आएगी वो कम आएगी और यूनिवर्सिटी का कार्य कम होगा एक विभाग में। मैं आज आप सब लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आपके पास ग्रीवांस फॉरवर्ड होती है तो रूटीन में हम बहुत सारे काम करते हैं। रूटीन बना हुआ है कि अच्छा ये कॉलेज से है, इसको कॉलेज भेज दो, ये पेंशन से है, ये पेंशन भेज दो, या हम इसका कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है एक बार उसको जरूर पढ़िए, और अगर जो मैंने लिस्ट दी कि ये इससे संबंधित अंडरटेकिंग है, हो सकता है कि लोग उसको अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट कर लेते हो कि यहाँ जो मैंने ग्रीवांस लगाई वो इन चीजों से संबंधित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो लिखते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी ग्रीवांसेस देखी हैं, जब हमारा CUET शुरू नहीं हुआ था तो बहुत सारे लड़के ये लिखते थे कि साहब मेरा 60% है और मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, प्रधानमंत्री जी मेरा एडमिशन करा दीजिए। अब ये कोई ग्रीवांस उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट के लिए जरूर है कि उसका एडमिशन नहीं हो रहा, लेकिन उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय क्या कर सकता है? दिल्ली विश्वविद्यालय की अपनी एक सेट प्रक्रिया है जिसके तहत वो अपने यहाँ प्रवेश कराता है। तो ये इसको अगर हम ग्रीवांस को पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं जिससे हम उसका जवाब दे सकते हैं। और आप सबसे एक अनुरोध है कि जब भी आप ग्रीवांस का जवाब भेज रहे हो तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि ये न कहें कि ये प्रक्रियाधीन है, इट इज अंडर प्रोसेस, यू हैव टू टेक अ कॉल। और दूसरी चीज, जब आप किसी ग्रीवांस का उत्तर भेजते हैं तो उसको बंद करके भेजिए, बंद करके क्लोज होना चाहिए। उसने कुछ रिक्वेस्ट की है, आइदर यू एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट, इट शुड नॉट बी ओपन एंडेड कि इन्होंने ये कहा है और ये ऐसे है। भाई इन्होंने ये कहा है, ये नियम है, इसके तहत ये नहीं हो सकता या ये हो सकता है। हो सकता है तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका अप्रूवल लेके आप उसको बता दीजिए कि आपका हो गया, और अगर नहीं हो सकता है तो भी उसको बता दीजिए, और यही बात ग्रीवांस के उत्तर में लिखिए। बहुत सारी ग्रीवांस हमारी कॉलेज से संबंधित होती हैं, परीक्षा विभाग से संबंधित होती हैं, पेंशन विभाग से संबंधित होती हैं। पेंशन की प्रक्रिया में समय लगता है, ये बात सही है, लेकिन पेंशन उसको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है ये निर्णय तो हो जाना चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उस हिसाब से उसका जवाब आए। ये आज मैं नोडल ऑफिसर हूं तो मुझे जो समझ में आया है, जो मुझे लगता है कि इससे हम अपने ग्रीवांस का जो लोड है वो कम कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉम्प्ट हो सकते हैं ग्रीवांस के जवाब में, इसलिए बता रहा हूं। कल को हो सकता है कि आप में से कोई यहाँ हो जो फॉरवर्ड कर रहा हो और मैं हूं जो इनपुट दे रहा हूं, तो इसलिए ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने ग्रीवांसेस का रिप्लाई जो नियत समय है उसमें दें। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है वो भारत सरकार की रैंकिंग में काफी नीचे है ग्रीवांस रिड्रेसल में। तो उसमें बहुत सारी उसका एक कारण ये भी है कि शिक्षा मंत्रालय में बहुत सारे विश्वविद्यालय और विद्यालय आते हैं जिनकी ग्रीवांसेस उनको डील करनी होती है। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ ये निर्देश आता है कि रिव्यू मीटिंग होनी है तो आप अपनी ग्रीवांसेस कम करिए। हो सकता है कि कल को हमको कोई डायरेक्शन भी पास हो कि आपकी इतनी ग्रीवांसेस पेंडिंग है जिस वजह से हमारे परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि ग्रीवांसेस को थोड़ा ज्यादा महत्व दें और उस समय सीमा का ध्यान रखते हुए उसका जवाब दें ताकि विश्वविद्यालय अपने ग्रीवांसेस का लोड कम कर सके। आप सब ने मुझे समय दिया, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहन राय जी, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म हमारी यूनिवर्सिटी में कैसे चल रहा है। इसके अलावा
एडमिशंस, एग्जामिनेशंस, रिक्रूटमेंट, इनके पास भी अपने अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल के मैकेनिज्म्स हैं। जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात रोहन जी ने बोली वो ये थी कि आप जवाब देने से पहले उस ग्रीवेंस को ज़रूर अच्छे से पढ़ें, ताकि जो आपका जवाब आए वो उसके हिसाब से हो, उसके या तो उसका कोई सोल्यूशन हो उसमें, या सोल्यूशन नहीं हो सकता तो वो बता दें कि वो सोल्यूशन संभव नहीं है, या आपके एरिया, मतलब जैसा एग्जाम्पल था कि 60% है और एडमिशन नहीं हो रहा, तो ऐसे ग्रीवेंस का कोई सोल्यूशन नहीं है तो स्पेसिफिकली बता देना चाहिए कि इसके तहत हमारी जो प्रक्रिया है ये है, उसके तहत ही ये कार्य हो सकता है, किसी और तरीके से नहीं हो सकता। थोड़ा सा आप इंडिकेट कर दें, और ये तभी संभव है जब आप उनको पढ़ेंगे। कई बार हम यही बात लागू होती है हमारी RTIs पे भी, हमारी जो RTI की रिक्वेस्ट आती हैं, हम लोग कई बार उसे बिना ठीक से पढ़े रूटीन जवाब दे देते हैं, और अंत में जो CPIO को भुगतना पड़ता है। अभी संजय जी अभी हैं कि नहीं, कल गए थे हियरिंग में, ये चीज़ जानते होंगे। तो हम सबका ये खाली नोडल ऑफिसर का या खाली CPIO का ये जिम्मेदारी नहीं है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरह से बताया कि आज आप उस चीज़ को डील नहीं कर रहे हैं, कल आप उसको डील करेंगे। एक टाइम था मैं CPIO थी, आज संजय जी CPIO हैं, आप लोगों में से भी कोई ना कोई बन सकता है। तो आप सिर्फ जो कागज आपके पास आ रहे हैं, ये सतर्कता यहीं से शुरू होती है कि आप जिस भी कागज को डील कर रहे हैं उसको ज़रा अच्छे से पढ़ें और अपना दिमाग लगाएं और फिर उस पर कार्य करें। ये नहीं कि बस मेरा काम है, बस एक पोस्ट ऑफिस की तरह इसको देख लिया और आगे बढ़ा दिया। मैं अभी अपने सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि रजिस्ट्रार साहब अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। थैंक यू। Thank you so much. I'm really thankful to the speakers for giving us the insight about the various topics, the 4 broad topics identified by the Government of India for discussion. अभी हम जब इससे बाहर निकलेंगे तो हमारे बीच में बैठे कई सारे साथी हमारे ये सोचेंगे, अरे हमें क्यों बुला दिया बेवकूफ़ों ने, हमारा क्या काम था यहाँ आने का, क्योंकि 4 लोगों का काम था, हमारा तो काम ही नहीं था इसमें। कि भाई स्टेट का काम है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट का काम है, IT का काम है, उनका काम है। हमने सबको इसलिए बुलाया कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति को, चाहे मेरी कॉलेज ब्रांच हो, चाहे मेरी फाइनेंस की ब्रांच हो, चाहे मेरा प्लानिंग यूनिट हो, चाहे मेरी IQAC हो, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के हिसाब से क्या क्या चीजें मुझे चेंज करनी है, क्या चीजें मैं आसान कर सकता हूं जिससे कि मेरी प्रक्रिया आसान हो जाए। प्रिवेंटिव मेजर के अंदर हम जब अपने हाउस अलॉटमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाते, हम अपनी मेंटेनेंस रिपेयर प्रॉपर नहीं कर पाते, हम कई चीजों में पिछड़ जाते हैं। जब वो रेवेन्यू लॉस होता है, इट इज ऑल्सो विजिलेंस एंगल। किसी की पे फिक्सेशन, किसी की पेंशन, किसी की कोई भी बेनिफिट्स जब रुकते हैं, वो ग्रीवियंस का कारण बनते हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि किस तरीके से हम उन चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सकें, क्योंकि कई तरीके के ग्रीवेंसेस जब मेरे पास आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं कि जी मेरी फाइल 2 महीने से पेंडिंग पड़ी और उसकी अभी आई और हो गई, हो भी सकती है, मना नहीं कर रहे, बट कुछ मैकेनिज्म हम डेवलप कर सकते हैं कि व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर कीपिंग ए थिंग विद अस। कहीं तो सिटीजन चार्टर बनाए हम भी, हमें अपने आप को भी कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा कि कोई चीज कितने दिन में मैं निकालूंगा या करूंगी, कैसे करूंगी, कोई दिक्कत है क्या है। तो उस चीज को ध्यान में रख के हर एक व्यक्ति को यह सोचना है जो अपनी सीट का कार्य कर रहा है कि किस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की उसको जरूरत है, क्या सपोर्ट हमारे संजीव सिंह जी से उसको चाहिए कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम जब चाहें वेबसाइट पे देख सकें या इंटरनली अपने मॉड्यूल से देख सकें। RTI के माध्यम में भी सेक्शन 4A की इंफॉर्मेशन लाई गई
एक बार अपलोड हो गई, उसके बाद आज तक अपडेट नहीं हुई। जो सरकार चाहती है वो यही चाहती है कि उन चीजों को हम रेगुलरली अपडेट करें, हम हर उस चीज को वहां पे लाएं कि जिससे कि आरटीआई के माध्यम में कुछ चीजें शायद कम हो जाए। हमने कई चीजें कोर्ट केस से सीखी, उसको इम्प्लीमेंट भी करी, लेकिन उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या उन चीजों को हमने अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया कि ये डिसीजन अब इस तरीके से चेंज हो गया है। So these are the things which we require to understand. यही चीज बतानी जरूरी है कि HODs भी आए हैं। संजीव जी ने कहा कि एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो लिंक करा गया, हमने रोका नहीं सर, हमने कोशिश करी है लिंक करने की कि सब अपलोड कर दें। काफी मेल्स गई, काफी चिट्ठियां गई, काफी अपलोड भी हुए, लेकिन हमने रोका नहीं। बट एज HODs we should also take this responsibility forward that every teacher should update their information on the website. समर पोर्टल पे जो एक्सेस है we should upload it. क्योंकि we don't want to take that corrective step कि आप नहीं करेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा। We are also one amongst you. रोहन ने बहुत आसान शब्दों में, लेकिन रोहन की गलती नहीं है कि उसमें कई चीजों में दिक्कत है। जो काम नहीं हो पाया उसमें थोड़ी सी दिक्कत हमारे पोर्टल में भी है, क्योंकि उसका काफी सारे कार्य डिपार्टमेंट से आना है। वो लीव रिकॉर्ड को लेके था टीचर्स का कि लीव रिकॉर्ड को अपलोड करो पोर्टल पे, और लीव मैनेजमेंट हम सारा पोर्टल से करेंगे। नहीं हो पाया क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस थे जो पता नहीं मुझे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए नहीं हुए, बट आई हैव बीन आस्किंग फॉर इट कि मैं कई बार बोलता हूँ कि लोग तो फाइलें नहीं करते, अप्रूवल लगाएं दौड़ाएं लोगों को, बट फिर अप्रूव करता हूँ, चलो फिर आऊंगा। सो लेट अस लुक फॉरवर्ड कि वो चीजें होंगी। ऐसे स्टेट के हैं रिकॉर्ड्स पर, और इसके साथ 5 सर्कुलर भी आए हैं जो विजिलेंस अवेयरनेस के हैं। मुझे उम्मीद है कि अब ये इंफॉर्मेशन जब हम पोर्टल पे अपलोड करेंगे, एटलीस्ट इन 5 टॉपिक के तहत तो काफी चीजें आएंगी। ACEC की मीटिंग होती है, हर बार रोस्टर को लेके इशू उठता है, हम डिफेंड करते हैं, और कॉलेज ब्रांच ने कोशिश करी कि कॉलेजेस उसको रोस्टर को अपलोड करें। और मैंने बार बार कॉलेज ब्रांच को ये बोला कि आप एक ऐसा पोर्टल बनाओ कि वहां पे उन लोगों का लिंक आए, रोस्टर जिस पॉइंट पे अवेलेबल है वो हमारे पास हो ना, हमारे पोर्टल पे, कि कोई भी आए हमारे पोर्टल पे क्लिक करेगा उसको रोस्टर वहां दिख जाए। लेकिन वो चीज नहीं हो पाई, इसीलिए आप सबका यहां होना जरूरी था। काउंसिल ब्रांच कई बार बता चुका कि कुछ लिस्ट चाहिए, हमें HODs अपॉइंट करने हैं जिनकी लिस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे दूसरे साथियों के कंट्रोल में है, वहां से करेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाए, नहीं आता। So these things require your intervention to upload all this information on the Samarth portal. एक बार हो गया, आप सबका आसान होगा चीजों का। So I would not take much time of yours and thank you so much once again. थैंक यू सर। सर की बातों में मैं 2 चीजें उजागर करना चाहूंगी। पहली बात, उन्होंने जब आप लोगों को एड्रेस किया तो बोला मेरा कॉलेज ब्रांच, मेरा काउंसिल ब्रांच, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो मेरा वाला एहसास हमारे रजिस्ट्रार के मन में है, क्या हमें टटोलना है कि हमारे मन में भी वो एहसास है? क्या हम जब अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो हम सोचते हैं मेरा विश्वविद्यालय, या नहीं सोचते हैं? अगर हम सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम नहीं सोचते हैं और ये नहीं सोचते कि ये कार्य मैं करूँगा तो मेरे विश्वविद्यालय का क्या नफा या नुकसान होगा, ये अगर मैं नहीं सोचता हूँ या नहीं सोचती हूँ तो सतर्कता और विजिलेंस सब निरर्थक हो जाती है। तो हम में से बैठे हर व्यक्ति को, और जो नहीं आ पाया उस व्यक्ति को भी, ये अपनापन की भावना आनी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये अपनापन की भावना नहीं आ जाएगी
तो जिस शिद्दत से रजिस्ट्रार साहब ये बातें बोल रहे हैं, उस शिद्दत से और उस शिद्दत से हम लोग नहीं सोचेंगे तो उतना सक्सेस हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। हमें भी उतना ही अपनेपन से इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब हमारा हर टीचर सोचेगा कि मेरा बायोडेटा जब वेबसाइट पे रहेगा तो उसको कोलेक्ट करके NIRF की रैंकिंग अपने आप बढ़ जाएगी। हमारे इंटरनेशनल पोर्टल में यूनिवर्सिटी इतना रिसर्च हो रहा है, हमारे यहाँ के फैकल्टी इतने ज़्यादा रिच हैं, बट हमारे पास इंफॉर्मेशन कोलेटेड नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इसीलिए श्यामारत मैडम बैठी हैं, जब कोलेट होती हैं चीज़ें तो पूरी नहीं आती है और शायद उसी वजह से हमारी रैंकिंग कम होती है। अदरवाइज हम लोग कहीं भी किसी रूप में भी कम नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने रेवेन्यू लॉस की बात की। जब हमारे कार्य की वजह से किसी का भी रेवेन्यू लॉस होता है, चाहे वो राज्य का चाहे वो इंडिविजुअल का, हम उसमें विजिलेंस एंगल आ जाता है ऑटोमेटिकली। और इस संदर्भ में मैं आपसे एक बात जो कहना चाहूँगी, मेरे को किसी ने मैनेजमेंट के डायरेक्टर ने, IIM की किसी डायरेक्टर ने ये बात कही थी और तब से मैंने उसको गांठ बांधा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बात को गांठ बांध लें। और वो बात ये है कि हमारी जो सैलरी आ रही है या जिस खर्चे से हम ये विश्वविद्यालय चला रहे हैं, ये टैक्स पेयर की मनी है। जब हम सोचते हैं कि हमारे टैक्स दिए हुए टैक्स से ये काम हो रहा है तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, या सोचते हैं ठीक है बर्बाद ना हो एक को। लेकिन आप गौर कीजिए कि ये टैक्स सिर्फ हमारे सैलरी क्लास से नहीं आ रहा है। वो मजदूर जो 2 समय का खाना भी नहीं खा पाता है, जब वो नमक खरीदता है तो जो टैक्स देता है, वो टैक्स जब जुड़ता है तब हमारी सैलरी आती है, तब हमारा ये संस्थान चलता है। हम इस चीज़ को दिल से गांठ नहीं बांधेंगे तो हम अपने कार्य को उतनी शिद्दत से नहीं कर पाएंगे और ना कितनी भी बार कोई भी हमें मोटिवेट करता रहे, हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को मैं चाहूँगी कि आप अपनाएं, अंतःकरण में इसको लें, तभी आज का कार्यक्रम सफल हो पाएगा। अब हम आज के कार्यक्रम में समापन की तरफ हैं और मैं स्पेसिफिकली धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे वाइस चांसलर साहब का, जो हमें हमेशा ओतप्रोत करते हैं अच्छे से काम करने के लिए। उनके कमरे में आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता है, उनके कमरे में जब घुसते हैं तो एक लिखा हुआ है, आई लाइक पीपल हु डिलीवर। उनके यहाँ ये मोटो है, हमारे वाइस चांसलर के कमरे में ये मोटो लिखा है, शायद आप लोगों को नहीं पता, कि जो डिलीवर करते हैं मैं उन्हें पसंद करता हूँ। तो ये चीज़ हमको आत्मसात करनी है हम सभी को, और हमें ये प्रूव करना है कि हम डिलीवर करें, जिससे हम हर तरह से आगे बढ़ सके, सतर्क रह सकते। सतर्कता अपने आप आ जाएगी जब हम अपने मन में ये सारी बात लेंगे। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे डीन ऑफ कॉलेजेस, हमारे डायरेक्टर साहब जो है साउथ कैंपस के, ये भी हमें समय समय पे बहुत साथ देते हैं। हम सभी ऑफिसर्स का साथ देते हैं, खड़े रहते हैं जब भी जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है। हमारे फाइनेंस ऑफिसर साहब 1 मिनट नहीं लगाते, एक बार बिजी थे, मैं खुशी तो बोले आप क्यों समय मांग रही हैं, आप आइए। तो इतना सपोर्ट इन लोगों के से हमें मिलता है। सिर्फ इस कार्यक्रम में एक बार मैंने कहा और सब लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे, हमारे सारे वक्ता बहुत बिजी हैं, आप सब लोग बहुत बिजी हैं, मगर एक शॉर्ट नोटिस पे सब लोग यहाँ आ गए। ये दिखाता है कि कितना सपोर्ट हम सभी लोगों को है। और आखिर में रजिस्ट्रार साहब तो ये लेके ही चल रहे हैं, इनका तो मोटो ही है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी वक्ताओं का धन्यवाद करती हूँ, उपस्थित सभा में सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में, चाहे वो गार्डन कमेटी हो, चाहे DUCC के लोग हो, चाहे जनरल ब्रांच के लोग हो, चाहे हमारे विजिलेंस के लोग हो, सभी ने आगे बढ़ के बहुत ही मदद की और आज के कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग नेशनल एंथम के लिए एक बार खड़े हो जाएं। धन्यवाद। पंजाब
आपकी बाईं तरफ थोड़ा रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी किया गया है, तो आप कृपया उसे ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने